Hey everyone, welcome to my channel Let's Bloom. The topic for today's video is fossils and the process of fossilization. This video will be helpful for the BSc as well as MSc students. So let's start with the video. What are fossils? So fossils are the objects or just the rocks which carries the remains of the dead organism. The remains here means the material left from the dead organism. Fossils can be of an entire organism or a part of them. Fossils can be found all over the world and tell us a lot about what life was like long ago. So basically जो fossils हैं वो क्या है? फॉसिल्स बेसिकली अर्थ की क्रस्ट में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज़म की डेथ के बाद हमें मिलते हैं. जब भी किसी ऑर्गेनिज़म की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद वो अपना कुछ उसकी बॉडी का कुछ पार्ट या फिर पूरी की पूरी बॉडी जो है वो अर्थ क्रस्ट में बरिड होकर फॉसिल्स की फॉर्म ले लेती है. उसी को हम बोल देते हैं फॉसिल्स. अब फॉसिल्स बनते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसको हम आगे स्टडी करेंगे. So this is the basic about the fossils. Next is who studies fossils. So scientists called the paleontologists study the plant and the animal fossils. Paleontologists use special tools for carefully uncovering the fossils from the ground so that the fossils are not damaged. Paleontologists then study those fossils to figure out how old they are and where they came from. नेक्स्ट इज़ व्हाट डू फॉसिल्स टेल अस. जो फॉसिल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. द फॉसिल्स कैन टेल अस व्हाई एन एनिमल वेंट एक्सटिंक्ट और डाइड आउट लॉन्ग अगो. मे बी एन एनिमल वेंट एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट कंडीशन और पोल्यूशन इज़ वन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन. These are some factors which are responsible for the fossilization of an. The next is the process of fossilization. So what is fossilization? The process of preservation of the dead organism or the organisms that are no longer exist or their traces is called as fossilization. They are formed when the body of an organism is buried in mud, dirt, sand or water shortly after death and before it begins to decay. Fossilization is a complex process and it takes millions of years. So fossilization क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और टाइम टेकिंग है. इस प्रोसेस से क्या होता है, फॉसिल्स की फॉर्मेशन होती है. जब भी किसी ऑर्गेनिज़म की डेथ हो जाती है तो उस डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है नेचुरली. और जो नेचुरली उसको प्रिजर्व करते हैं या फिर उसके किसी पार्ट को या फिर डेड ऑर्गेनिज़म को, उसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं फॉसिलाइजेशन. The next is the steps of the fossilization. So let's start with the steps of the fossilization. The first step of the fossilization begins with the death of the organism. Whenever an organism dies, the process of fossilization starts. The second step is the burial of the organism after the death. Burial takes place in the oceans, lakes, mountains, etc. After the death of the organism get buried in the oceans, lakes, mountains, etc. Over the time, the layer of the soils start accumulating on the dead organism and the dead organism get covered by more and more layers of the sediment. This process is called as the lithification. This minimizes the exposure to oxygen and microorganisms and slow down the process of decomposition. So स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप क्या है, जब ऑर्गेनिज़म की डेथ हो जाएगी तो फॉसिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी. सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, बरियल ऑफ द ऑर्गेनिज़म. जैसे ऑर्गेनिज़म की डेथ हुई है उस ऑर्गेनिज़म को या तो फिर बरिड कर दिया जाएगा या फिर वो अपने आप ही धीरे धीरे बरिड होना स्टार्ट हो जाएगा. विद टाइम फिर क्या होगा कि जो सॉइल है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी बरिड ऑर्गेनिज़म के ऊपर. जो ये कवरिंग हो रही है सॉइल की, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं लिथिफिकेशन. और जो ये लिथिफिकेशन है ये हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज़म है उसका ऑक्सीजन के साथ एक्सपोजर ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो डीकम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और एक तरीके से एसेप्टिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं.
So the next step is, as more layers deposited, this generate a pressure on the fossil. Mineral rich water carrying dissolved minerals like calcium carbonate, silica and iron percolates or enters through the sediment and enters the remains. This help in preserving the organism. This is called as a petrification. जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स जो हैं वो प्लांट के ऊपर डिपॉजिट होती जाएंगी सॉइल की, तो क्या होगा, प्लांट के ऊपर या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डेड हुआ है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब प्रेशर के साथ क्या होगा कि जो सेडिमेंट में जितना भी वाटर है जिसमें मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, वो मिनरल रिच वाटर जो है वो प्लांट के अंदर एंटर कर जाएगा थ्रू इट्स सेल वॉल, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रिजर्वेशन इजी हो जाएगी और इसी स्टेप को हम पेट्रिफिकेशन बोल देते हैं। व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर इज़ रिप्लेस्ड बाय द मिनरल्स सच एज सिलिका, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज अ पेट्रिफिकेशन। द नेक्स्ट then over the time the process of soil erosion, uplifting, weathering and so on may expose the fossil to the surface. Paleontologists then carefully excavate and study the fossil to learn about the life on the earth for millions of years. So this is all about the steps of the fossilization. The next is the types of fossils and some important terms. The first term is compression. What is compression? Fossilization of soft body organism is called as compression. By the pressure of the sediment, the soft tissue get compressed on the surface of the rock. This process leads to formation of imprints or impression of the organism's body rather than the preservation of the actual organic material. So compression क्या है? जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का बरियल होता है तो जो ऑर्गेनिज्म बरीड हुआ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ऊपर वाली सॉइल लेयर्स का, और उन प्रेशर की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो इम्प्रिंट्स हैं वो किसी भी सरफेस के ऊपर आ सकते हैं। उन्हीं इम्प्रिंट्स जो हैं उनको हम कंप्रेशन बोल देते हैं। और जो ये कंप्रेशन है इसमें क्या होता है, ये बेसिकली इम्प्रिंट्स हैं, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल बॉडी प्रिजर्व नहीं होती है। द नेक्स्ट टर्म इज़ द कास्ट एंड द मोल्ड। ड्यूरिंग द फॉसिलाइजेशन द ऑर्गेनिज्म मे और मे नॉट डीकम्पोज्ड completely. If the organism decomposed completely in sediments, the decomposers create a hollow space of the organism that can be filled by the mineral and thus creating a space which serve as a record of its existence. The space left is called as a mold, and when the space get filled by the mineral it is called as a cast. तो कास्ट एंड मोल्ड क्या है कि फॉसिलाइजेशन के टाइम पर जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल के अंदर बरीड हुआ, तो बरीड होने के बाद क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है हो सकता है कि उसके अंदर वाला सारा हिस्सा जो है वो डीकम्पोज हो जाए। अगर वो कम्प्लीटली डीकम्पोज हो जाएगा तो वो एक होलो स्पेस जो है वो लेफ्ट कर देगा। अब जो वो होलो स्पेस है उसी को हम बोल देते हैं क्या, मोल्ड बोल देते हैं। अगर वो होलो स्पेस सॉइल के मैटर के साथ फिल हो जाएगी तो उसको हम कास्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट इज़ द ट्रेस फॉसिल। अ ट्रेस फॉसिल इज़ अ एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड लाइक द फुटप्रिंट और द फीसेस। दीज गिव्स अस एन आइडिया हाउ एनिमल्स मे हैव लिव्ड। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के फुटप्रिंट्स या फिर उसकी जो फीसेस है डेट जो एक्सक्रीटा है अगर वो मिल जाए तो उसको हम ट्रेस फॉसिल्स जो हैं वो नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द ट्रू फॉसिल। अ ट्रू फॉर्म फॉसिल is created when part of the creature like the bone is preserved in a substance. कई बार जो fossils हैं या फिर जो भी हार्ड पार्ट है ऑर्गेनिज्म का वो प्रिजर्व हो जाता है किसी सब्सटेंस में, तो उस तरीके के फॉसिल्स को या फिर एक कंप्लीट फॉसिल को हम ट्रू फॉसिल बोल देते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्बर। एम्बर फॉसिल्स क्या है? एम्बर फॉसिल्स इट कैन प्रिजर्व स्मॉल ऑर्गेनिज्म विद फाइन डिटेल्स ऑफरिंग इनसाइट टू द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द एंशिएंट फॉरेस्ट इंक्लूडिंग देयर अपीयरेंस एंड इंटरेक्शंस। बेसिकली एम्बर एक रेजिनस मटेरियल है जो प्लांट रिलीज़ करता है, और जो ये एम्बर है उसमें फॉसिल्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर एम्बर में फॉसिल्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाएं तो जो फॉसिल्स हैं उनकी जो भी डिटेल्स हैं, फाइन डिटेल्स हैं, वो बिल्कुल वैसी ही रहती हैं जैसी वो ओरिजिनली प्रेजेंट थी। तो इस तरीके के फॉसिल्स को हम एम्बर फॉसिल्स बोल देते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फॉसिलाइजेशन एंड द टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।